Hello everyone, good morning. Welcome to the third part of the strategy development and along with logic and backtest. This particular webinar is conducted by SmartLearn. SmartLearn is a product of Jainam Broking Limited. Here we offer webinars, seminars, recorded videos, workshop in mode of both online and offline mode. There are multiple trainers from across the industry who convey their mastery to all stock market enthusiasts through SmartLearn. Talking about today's trainer, Piyush Agarwal, he is a chartered accountant and company secretary by educational qualification and having 6 years of experience in renowned MNC and he is gaining experience in the field of option trading using algorithmic trading. He is keen interest in stock market and is currently in the strategy development and project management team of Jainam Broking Limited. He has also passed NISM Series 8 exam with 84 percentage. So I welcome Piyush Agarwal sir to continue. Hello guys, good morning. I hope everybody is doing fine. So guys, welcome to the third session of strategy development along with logics and backtest. So as Dishant mentioned, I am Piyush Agarwal and CAC is by education and working with Jainam Broking Limited in the strategy development department. And I'm with Jainam Broking since 1 year now, and I look after 3 projects of the company. So yeah, let's start. So topics for discussion today would be, we'll be going through the basics of algo. क्या होता है, कैसे करते हैं, why algo trading. Then next would be जो हमने strategy देखी है अभी तक 2 webinars में, हम उनका एक बार रिविजन करेंगे. आज की strategy डिस्कस करेंगे. We'll take the Q&A and we'll finish off the session. हम हर सेशन में करते हैं, वो इस सेशन में भी करते हैं. So let's start with what is algo trading and why algo trading. क्या फायदे हैं algo trading के, right? So algo trading basically means auto trading या system trading. Algo is a short name for algorithm, right? तो if you go to Google and search के algorithm का मतलब क्या होता है, right? So you'll get a definition. Process or set of rules to be followed in calculations or problem solving by a computer. मतलब कि एल्गो क्या करेगा कि एल्गो में बेसिकली क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके कोई भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है या फिर उसका कैलकुलेशन किया जाता है, राइट? अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा बोर्ड मास, राइट? व्हाट इज बोर्ड मास? दैट मींस ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन दिया है, राइट, और वो कंप्यूटर में डाल दिया उसको, जस्ट फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू ब्रैकेट 10 + 2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 into 10 ब्रैकेट 5 to whatever, राइट? तो अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक प्रॉब्लम है जो आपने कंप्यूटर को दिया है. तो अब कंप्यूटर उसको कैसे सॉल्व करेगा? कंप्यूटर उस पर बोर्ड मास लगाएगा, बोर्ड मास का रूल लगाएगा, बोर्ड मास का प्रोसेस लगाएगा एंड इसके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, right? So this was just a very small example of what is algo, right? It again, I will tell you again that it basically means a set of rules or process which is followed to solve a problem and to perform calculations, right? So this was about algorithm. अब algorithms जो है वो हम ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? एल्गो ट्रेडिंग जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब बेसिकली एल्गोरिथम्स को ट्रेडिंग में यूज करना. तो एल्गोरिथम्स को अगर मुझे ट्रेडिंग में यूज करना है तो मैं बहुत तरीके से उसको यूज कर सकता हूँ. पहला तो ये कि मैं एल्गोरिथम्स लगा के कोई भी डेटा पे उसको बैकटेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अब बैकटेस्ट कर सकता हूँ इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मेरे पास कोई भी 10 साल का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड मुझे उस पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके कुछ बैकटेस्टिंग करना है, राइट? तो अभी मुझे कुछ भी परफॉर्म करना है तो मुझे ऑब्वियसली कुछ एक फ्लो देना पड़ेगा, राइट? मुझे मेरे कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे कि अच्छा आपके पास ये डेटा है तो आप पहले इसको प्लस माइनस कीजिए, उसके बाद ये डेटा को आप क्या बोलते हैं, प्रोसेस कीजिए थोड़ा, ठीक है? मतलब एक टेबल में डालिए, टेबल में डालने के बाद आप ये प्रोसेस कीजिए, अगर ऐसा हो तो ऐसा कीजिएगा, ऐसा हो तो ऐसा कीजिएगा, फिर बाद में ये इस
इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोलूंगा कि अच्छा इसमें इफ दिस इज देयर तो ये कीजिएगा, इफ दिस इज नॉट देयर तो ये कीजिएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैंने एक सेट ऑफ रूल्स दे दिया है जिसके बेसिस पे अब कंप्यूटर मेरे लिए डेटा को बैक टेस्ट करेगा। ठीक है, तो वहां पे मैं एल्गोरिदम यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज मुझे अगर उस डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है, तो भी मैं सेट ऑफ रूल्स बना सकता हूँ कि अच्छा अगर ये रिजल्ट निकल रहा है तो आप ये नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म कीजिएगा, अगर ऐसा रिजल्ट है तो ये परफॉर्म कीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल एक्सेल यूज करते हैं, राइट, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि इफ कंडीशंस अगर आप यूज करते हैं या वीलुक कंडीशंस यूज करते हैं, तो वो सब आप बेसिकली एल्गोरिदम्स ही यूज कर रहे हैं, मतलब सेट ऑफ रूल्स यूज कर रहे हैं टू सॉर्ट योर डेटा, टू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, right? So we can use algorithms for backtesting, analyzing. Next is executing trades. अब हम एल्गो ट्रेडिंग जब बोलते हैं स्पेसिफिकली, तो दैट मीन्स कि आप एल्गोस को यूज करके ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग कर रहे हो इसका मतलब कि आपने कंप्यूटर को ये बोल दिया कि कंप्यूटर अगर इतने बजे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मुझे ये चीज में ट्रेड लेना है, राइट, और मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा, मेरा ये टारगेट रहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपने एल्गोरिदम को या कंप्यूटर को सब चीजें समझा दी है। अब कंप्यूटर ने वो सब चीजें याद कर ली है, तो जब भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, ठीक है, तो कंप्यूटर अपने आप ट्रेड्स ले लेगा। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एल्गो ट्रेडिंग, मतलब एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड्स थ्रू एल्गोरिदम्स, राइट। नेक्स्ट इज यू कैन मैनेज द रिस्क यूजिंग एल्गोरिदम्स। फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ या फिर ट्रेड मैनेजमेंट अगर मुझे करना, तो वो सब कुछ मैं एल्गोरिदम्स के थ्रू कर सकता हूँ। So you can do backtesting, analyzing, you can execute trades, manage risk, and you can virtually do everything with in trading using algorithms, right? So I just hope this point is very clear to you, right? कोई भी doubt हो तो you may please voice too low. Is the voice too low? Please comment में बताइए, is the voice too low? Okay, so voice is okay, I think. Okay, fine, thank you. नेक्स्ट इज कि चलो ठीक है, अब मैंने एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उसको सीख लिया। अब ऑब्वियसली कोई भी चीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब एल्गोस को यूज करने का एडवांटेज क्या है कि फर्स्ट वन इज इमोशनलेस ट्रेडिंग। तो मुझे बार बार सोचना नहीं है कि अरे यार क्या होगा क्या होगा, बिकॉज मैंने सेट ऑफ रूल्स बता दिए। अब सेट ऑफ रूल्स फॉलो होंगे तो कंप्यूटर अपने आप ट्रेड ले लेगा, तो मेरे उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट इज इट इज फुल्ली ऑटोमेटेड, मतलब आपको बार बार स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। और आपकी सपोज 10 कंडीशंस है फॉर टेकिंग अ ट्रेड, तो आपको वो 10 की 10 कंडीशंस अब मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर अपने आप उन सब चीजों को चेक कर लेगा और ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल एक हम बहुत कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रैटेजी सोचे, तो अगर मैं बोलूं कि 20 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होना चाहिए, आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए, मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, हमारा मैकडी करके जो है एक इंडिकेटर है उसमें भी क्रॉसओवर होना चाहिए। तो अगर मैं ये 4 इंडिकेटर के बेसिस पे अगर मेरे को ट्रेड मिलता है, देन ओनली आई वांट टू गो लॉन्ग। ओके, अब अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इतने सारे इंडिकेटर्स को साथ में रख के ट्रेडिंग करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। या क्या होगा कि अगर आपको 10 इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना है, तो 3 इंस्ट्रूमेंट्स में अगर एंट्री आई तो आप शायद एक में ले पाए, 2 में नहीं ले पाए, बिकॉज मैनुअली आप कितना सब चीजें एक साथ करेंगे, राइट। तो हमने कंप्यूटर को सब समझा दिया, हमने कंप्यूटर को ट्रेन कर दिया। तो अब जब भी ये कंडीशंस उन 10 इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगी, कंप्यूटर अपने आप ट्रेड लेता रहेगा, राइट। अब ये हमारे प्रॉज है, तो ऑब्वियसली उसके कॉन्स भी कुछ होंगे। कॉन्स क्या है कि अब आप सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार आज मार्केट बहुत बियरिश है, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए जहां पे आपकी बुलिश ट्रेड्स आने शुरू हो जाए, तो आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ एक है कि आप उस दिन अपने एल्गो ट्रेडिंग को बंद कर दें, और कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज देयर आर टेक्नोलॉजिकल रिस्क, मतलब अब ऑब्वियसली अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है पावर चला जाए, इंटरनेट चला जाए, ठीक है, और आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाए, और इट कुड बी एनी रीजन। तो अगर टेक्नोलॉजिकल रिस्क हुआ तो आपको एल्गो ट्रेडिंग हैम्पर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वर सम ऑफ द प्रोस कॉन्स एंड दिस वाज अबाउट एल्गो ट्रेडिंग, right? So now let's jump to the strategies. So we'll revise strategy number 1, right? So it was a positional strategy on Nifty options.
इसमें हम क्या करेंगे कि जो एक्सपायरी डे है, फॉर एग्जांपल अभी एक्सपायरी जो है हमारी थर्सडेज को होती है निफ्टी में गाइस, राइट। तो उसमें 2 दिन पहले मतलब ट्यूसडेज को हम लोग 9:30 को एंट्री करेंगे कॉल और पुट में, राइट। अब कॉल पुट में एंट्री भी करना है तो उसमें हम बाय भी करेंगे और शॉर्ट भी करेंगे, ठीक है। अब बाय और शॉर्ट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्राइक प्राइसेस क्या होंगे। तो हम स्ट्राइक प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम सिलेक्ट करेंगे कि जो 11 रुपए वाला या 10 रुपए वाला प्रीमियम जहां पे चल रहा है जिस स्ट्राइक पे, वो स्ट्राइक आप शॉर्ट कर दो, राइट। और 5 या 6 रुपए वाला जो प्रीमियम चल रहा है उन स्ट्राइक्स को आप बाय कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी निफ्टी चल रहा है सपोज 18,000, ठीक है। तो हो सकता है 18,500 कॉल का 11 रुपए प्रीमियम चल रहा हो तो आपने वो शॉर्ट कर दिया, और 18,600 का आपका 5 रुपए का प्रीमियम चल रहा हो तो वो आपने बाय कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से कॉल में भी करना है और पुट में भी करना है, ठीक है। बट ये भी मेक श्योर करना है कि जो आपने शॉर्ट किया है और जो लॉन्ग किया है उसके बीच में 150 पॉइंट्स से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल 18,500 अगर आपने शॉर्ट किया है तो 18,650 की स्ट्राइक्स तक आपको बाय कर लेना है, ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क ऑफ मोर देन 150 पॉइंट्स ऑन आइदर साइड, राइट। हम इसमें बेसिकली स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या है, जब हम शॉर्ट करेंगे कॉल और पुट और जब हम बाय करेंगे, ठीक है, तो बाय करने का लॉजिक तो ये कि मुझे हेज करना है, मुझे नेकेड शॉर्ट पोजीशंस नहीं रखनी है, ठीक है। और शॉर्ट करने का लॉजिक क्या है कि अगर आप 18,000 पे चल रहा है निफ्टी तो कम से कम 300-400-500 पॉइंट्स दूर के आपको स्ट्राइक्स शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो मुझे बस ये मेक श्योर करना है कि निफ्टी में इतना मूवमेंट नहीं आएगा ऑन आइदर साइड कि मेरा दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैं थीटा डीके के लिए प्ले कर रहा हूँ, फाइन। इसमें आई जस्ट होप किसी को डाउट नहीं है। सो दिस वाज अबाउट एंट्री। अगर मैं एग्जिट की बात करूं तो क्या होगा कि जितना मुझे आइदर साइड पे प्रीमियम रिसीव हुआ है अगर उसका 3 टाइम्स प्रीमियम हो जाता है देन आई विल एग्जिट द पोजीशन। फॉर एग्जांपल 18,500 का कॉल मैंने शॉर्ट किया 11 रुपए में, 18,600 का कॉल मैंने बाय किया 5 रुपए में, तो टोटल प्रीमियम मुझे 6 रुपए मिला। अब उस प्रीमियम का भाव मतलब कंबाइंड प्रीमियम अगर 18 रुपए हो जाएगा तो मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा, राइट। कॉल वाली पोजीशंस, पुट वाली पोजीशंस मेरी खड़ी रहेंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर पुट वाली कंडीशंस में 18 जो भी मुझे प्रीमियम रिसीव हुआ अगर उसका 3 गुना हो जाता है तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, राइट। अब जस्ट फॉर एग्जांपल ना ही मेरी कॉल साइड की पोजीशन हिट हुई है ना ही पुट साइड की, तो मुझे एक्सपायरी वाले दिन 3:30 बजे मतलब 3:29 या 3:28 को उनको स्क्वायर कर दें, राइट। सो दिस वाज स्ट्रैटेजी नंबर 1। This was that strategy was on Nifty positional. Strategy number 2 is again Nifty Bank Nifty, but इसमें हम लोग इंट्राडे करेंगे और इसमें हम बाइंग करेंगे, ऑप्शंस बाय करेंगे, राइट। तो इस स्ट्रेटजी का लॉजिक क्या है, आपको निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे 13 EMA प्लॉट करना है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। अगर उस 13 EMA के ऊपर पूरा का पूरा कैंडल बन रहा है मतलब 5 मिनट का कैंडल का लो अगर 13 EMA के ऊपर है, ठीक है, तो मेरी जो एंट्री कंडीशन है एक तरह से वो मेरी फुलफिल हो जाती है। सो मेरी एंट्री कंडीशन बहुत सिंपल है, 13 EMA के ऊपर अगर मेरा लो है कैंडल का 5 मिनट्स में निफ्टी टाइम फ्रेम निफ्टी स्पॉट में, तो मेरा एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अभी मेरा एंट्री ट्रिगर कब होगा, एंट्री और साथ साथ में सॉरी जस्ट इसमें एक कंडीशन और है कि 13 EMA के ऊपर लो होना चाहिए एंड साथ ही साथ वो कैंडल मेरा इनसाइड बार होना चाहिए। अब इनसाइड बार के लिए हम प्रीवियस कैंडल के साथ प्रीवियस कैंडल का जो हाई लो है उसका हम हाई लो कंपेयर करेंगे, मतलब हाई टू लो एंड हाई टू लो का कंपैरिजन होगा, ठीक है। अगर इनसाइड बार है 13 EMA के ऊपर अगर मेरा लो है तो मेरी कंडीशंस एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। एंट्री मेरी ट्रिगर कब होगी, जब वो इनसाइड बार का हाई जैसे ही ब्रेक होगा तब मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। और अगर वो हाई 3 कैंडल्स तक ब्रेक नहीं होता है तो मैं अपनी एंट्री नहीं लूंगा, मतलब मेरी एंट्री कंडीशन जो है वो वायलेट हो जाएगी। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि वेटिंग कैंडल 3 का लॉजिक क्या है। इफ यू वांट टू हैव अ लुक तो आप स्ट्रेटजी मतलब वेबिनार सेकंड वापस से देख सकते हैं, राइट। अब मुझे एंट्री अगर मेरा हाई ब्रेक हो जाता है तो मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई। अब एंट्री के लिए मुझे क्या करना है कि उस टाइम पे जो एटीएम चल रहा होगा वो मुझे एटीएम कॉल बाय करना है, राइट। एटीएम कॉल बाय करना है
मेरा टारगेट रहेगा स्पॉट चार्ट पे 0.4% का मेरा टारगेट है और 0.25% का मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, मैक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स रहेंगे 2 ट्रेड्स पर डे एंड स्क्वायर ऑफ टाइम रहेगा 3 PM। मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, टारगेट भी हिट नहीं हुआ, तो मैं 3 बजे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। राइट, सिंपल स्ट्रेटजी। ये निफ्टी के लिए था। अगर आपको सेम स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में करना है तो आपको 5 मिनट्स की जगह 10 मिनट्स यूज करना है। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस विल बी 150 पॉइंट्स एंड टारगेट 175 पॉइंट्स ऑन स्पॉट चार्ट। सो दैट वाज द ओनली डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। Rest everything is same, right? So that was about strategy number two. Now let's move ahead to strategy number 3, जो हमारी आज की स्ट्रेटेजी है, राइट? तो स्ट्रेटेजी 1 में मैंने निफ्टी में ट्रेडिंग की थी, पोजिशनल ट्रेड था जिसमें मैंने ऑप्शंस शॉर्ट किए थे। स्ट्रेटेजी नंबर 2 में मेरा इंट्राडे ट्रेड है जिसमें मैं ऑप्शंस बाय कर रहा हूँ। ठीक है, आज की जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी इंट्राडे है और इसमें हम ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें हम फिन निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक जो भी हमने 2 स्ट्रैटेजीज देखी हैं उनमें हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बट आज का जो स्ट्रैटेजी है दैट इज ऑन फिन निफ्टी, राइट? तो दैट्स अ गुड थिंग। अभी आई जस्ट टेल यू कि एंट्री कंडीशंस क्या है, इसमें एंट्री क्राइटेरियाज क्या है। आपको जब मार्केट शुरू हो जाए, मतलब 9:15 से 9:30 का, आपको फिन निफ्टी स्पॉट में या फ्यूचर्स में, वन एंड द सेम थिंग, फिन निफ्टी फ्यूचर्स में आपको 9:15 से 9:30 के बीच में जो हाई लो बना वो आपको मार्क कर लेना। ठीक है, सपोज अभी फिन निफ्टी चल रहा है 19,000, मतलब 19,500 पे ओपन हुआ। ठीक है, उसने हाई लगाया 19,600 का और लो लगाया 19,400 का 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक। तो 19,600 का आपका हाई हो गया और 19,400 का आपका लो हो गया। ठीक है, आपने उसको मार्क कर लिया। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है कि जब भी कोई भी साइड ब्रेक हो तो आपको ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 9:30 बजे के बाद जो हाई बना, 9:30 तक जो हाई बना 19,600, अगर वो 10 बजे ऊपर की साइड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लो बना था उसको राउंड करने के बाद जो स्ट्राइक आया वो पुट हम शॉर्ट कर देंगे। पुट शॉर्ट कर देंगे मतलब क्या हुआ, ये लॉजिक क्या हुआ स्ट्रेटेजी का? लॉजिक अगेन इट्स वेरी सिंपल। ये हमारी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इसमें मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि 9:30 बजे तक जो मेरा हाई बना, अगर वो ऊपर की साइड ब्रेक हो जाता है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि अब मार्केट या तो ऊपर जाएगा या साइडवेज जाएगा, बट नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज 9:15 से 9:30 के बीच में बहुत वोलेटिलिटी होता है और वोलेटिलिटी से हमारे को एक रेंज मिल गई। अब उस रेंज का जिस भी साइड ब्रेक होता है हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट उसके अपोजिट साइड नहीं जाएगा, राइट? तो सिंपल स्ट्रेटेजी, 9:30 तक का हाई अगर ऊपर की साइड ब्रेक हो जाता है तो मुझे मेरा बायस जो है, जो मेरा मोड है वो मेरा बुलिश मोड हो गया वो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं कॉल बाय कर सकता हूँ या मैं पुट शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं पुट शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब पुट शॉर्ट करना है मुझे, तो ऑब्वियसली मुझे स्ट्राइक प्राइस भी चाहिएगा, कौन सा स्ट्राइक मुझे चूज करना है। तो उसके लिए जो मेरा लो बना उसको मैंने राउंड किया और राउंड करने के बाद जो मेरा स्ट्राइक बना उसको, उसका पुट मैंने शॉर्ट कर दिया। इट इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, एंड साथ ही साथ में मैं 5 रुपए का जो भी प्रीमियम चल रहा होगा उस वाले स्ट्राइक को बाय कर लूंगा एज अ हेज। परफेक्ट। वी विल टेक ओनली 1 ट्रेड पर डे। फॉर एग्जांपल हाई ब्रेक हुआ तो आपने पुट शॉर्ट कर दिया, ठीक है, बट इन केस प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब लो टूट गया है तो मैं लो, मतलब मैं कॉल भी शॉर्ट कर दूं, नहीं। हमें सिर्फ एक ट्रेड लेना है पूरे दिन में, दैट इज इट। ओनली 1 ट्रेड पर डे। जिस भी साइड ब्रेक हो गया उसका अपोजिट साइड का हम ट्रेड ले लेंगे। स्टॉप लॉस विल बी 50%। स्क्वायर ऑफ टाइम इज 3 PM। फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता 3 बजे तक तो आप 3 बजे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। एंड वी हैव टू रन द स्ट्रेटजी ऑन ऑल डेज। मतलब ऐसा नहीं कि मंडे को ट्रेड नहीं करना है या ट्यूसडे को ट्रेड नहीं करना है, कि ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्या उस दिन ट्रेड करना है कि नहीं करना। वी हैव टू ट्रेड द स्ट्रेटजी ऑल डेज एवरी डे एंड द लॉजिक्स वुड बी सेम एवरी डे, राइट? जस्ट 1 मिनट, कुछ डाउट्स हैं, जस्ट टेक द डाउट्स। आई टेक द डाउट्स लेटर ऑन। पहले मैं आपको एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन सब समझा देता हूँ। तो एंट्री क्राइटेरिया मैं जस्ट आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ।
9, 9:15 से 9:30 का हमको हाई लो बनाना है। अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो जो लो बना उसको राउंड करके मैं पुट शॉर्ट कर दूंगा विथ 50% स्टॉप लॉस, ₹5 का कवर बाय कर लूंगा। वी विल टेक ओनली वन ट्रेड पर डे and square of time is 3 p.m. right? And stop loss would be 50% on the shorted legs, right? So this was the strategy. Now we'll take some doubts, which doubts hai. How have you decided 3 times? Why not any other number? So guys, that was about strategy number 2. I would recommend कि आप लोग strategy number 2 देखना है तो आप लोग एक बार webinar 2 देख लें, तो आपको सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट मीन्स सेल, यस, शॉर्ट का मीनिंग सेल है, ठीक है, शॉर्ट करना मतलब सेल कर रहा हूं मैं। एक्सपायरी तो हम वीकली एक्सपायरी चूज करेंगे गाइस, विल बी चूजिंग द वीकली एक्सपायरीज। चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने 2 चार्ट की फोटोज ली हैं। बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स भी मैं आपको शो करूंगा। स्ट्रेटजी 2 मिस्ड आउट, गाइस प्लीज वॉच वेबिनार नंबर 2 where we can get a record. I will just let you know कि आपको रिकॉर्डिंग कहाँ से मिल सकती है, right? Okay, fine. So these were the only doubts. Perfect, perfect. So now I will show you the snaps of 2 charts that I have taken. So ये 2 charts हैं जिसके फोटोज मैंने लिए। इसमें क्या हो रहा है कि 15 मिनट का कैंडल बना, ठीक है, उसका हाई बना 19458 एंड इसका लो था 19374, ठीक है। अभी प्राइस ने ये रेंज बनाने के बाद प्राइस इस रेंज में ही चलता रहा, प्राइस इस रेंज में ही चलता रहा एंड देन प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। अब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा बिकॉज मेरा बायस जो है वो बियरिश है। जो मेरा बायस है वो बियरिश है, तो मुझे 2 चीजें मैं कर सकता हूँ, या तो मैं पुट बाय कर सकता हूँ या मैं कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और कॉल शॉर्ट करने के लिए स्ट्राइक चाहिए, तो मैं स्ट्राइक कौन सा बनाऊंगा, अभी यहाँ पे जो हाई बना है वो 19458 का हाई बना है, तो मैं उसको राउंड करूंगा टू नियरेस्ट 50। तो उसको राउंड करने से जो मेरा स्ट्राइक बना वो बना 19450, मतलब मैं 19,450 का कॉल शॉर्ट करूंगा विथ 50% स्टॉप लॉस एंड ₹5 का जो भी कवर है वो मैं बाय कर लूंगा कॉल में, राइट। सो दिस वाज वन चार्ट। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे, इधर हम देखेंगे तो हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, हाई था उसका 19327 एंड लो था 19263, ठीक है। तो अब हाई ब्रेक हुआ है तो हम ऑब्वियसली जो लो है उसका राउंड करके उसका पुट शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब लो जो था वो था 19263, ठीक है, तो मैं उसको राउंड करूंगा तो नियरेस्ट 50, तो वो बना 19250, तो मैं 19,250 का पुट शॉर्ट कर दूंगा, राइट। सो आई जस्ट होप स्ट्रेटजी हैव बिकम मोर क्लियर नाउ। For strategy 1 we exit okay. So लॉजिक क्या है स्ट्रेटजी का, लॉजिक्स मैंने काफी हद तक तो एक्सप्लेन कर दिया है, बट कुछ डाउट्स आ सकते हैं कि फिर निफ्टी क्यों, बैंक निफ्टी या निफ्टी क्यों नहीं, ठीक है, 50% स्टॉप लॉस क्यों नहीं, या 9:15 से 9:30 का रेंज क्यों, ठीक है, हम पुट को शॉर्ट मतलब ऑप्शंस को शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, लॉन्ग क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सब डाउट्स आ सकते हैं। सो लेट्स टेक द डाउट्स वन बाय वन। फर्स्ट वन इज फिन निफ्टी। तो हमने फिन निफ्टी क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज अगर आप फिन निफ्टी देखेंगे तो फिन निफ्टी इज more volatile as compared to nifty and less as compared to bank nifty, right? मतलब फिन निफ्टी का जो वोलेटिलिटी होता है नॉर्मली वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। अभी हमें ये भी पता है स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं कि हायर द वोलेटिलिटी हायर वुड बी द प्रीमियम, लोअर द वोलेटिलिटी लोअर वुड बी द प्रीमियम, ठीक है। तो अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा जिसका वोलेटिलिटी बहुत कम है तो उसका प्रीमियम भी बहुत लो है, तो मुझे प्रीमियम ही कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं निफ्टी को एक्सक्लूड कर रहा हूं कि मुझे निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं करना। अभी बैंक निफ्टी में प्रीमियम मुझे नो डाउट बहुत हाई मिलेगा, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि आपका पहले हाई ब्रेक करेगा बाद में लो ब्रेक कर देगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो मुझे बीच में रहना है,
जहां पे मुझे वोलेटिलिटी कम भी नहीं चाहिए बिकॉज मेरा प्रीमियम कम हो जाएगा, और मुझे वोलेटिलिटी हाई भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मुझे बीच का एक रास्ता चाहिए। तो वो जो बीच का इंस्ट्रूमेंट है वो मेरे लिए है फिन निफ्टी, राइट? आप इसको बैंक निफ्टी पे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, हमने बैंक निफ्टी पे भी किया है, निफ्टी पे भी किया है, बट द बेस्ट रिजल्ट दैट वी हैव गॉट वाज इन फिन निफ्टी, राइट? नेक्स्ट वन इज इट्स अ सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे हैं इसमें, इट्स अ सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इज 9:15 से 9:30 का टाइम क्यों, 9:15 से 10 का टाइम क्यों नहीं? क्योंकि अगर सपोज आपने 9:15 से 10 का रेंज बना दिया, तो बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट 9:15 से 10 के रेंज में ही पूरा दिन घूमता रहा, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द वॉलेटिलिटी जो आना था वो 9:15 से 10 के बीच में आ गया। अब पूरा दिन मार्केट उसमें घूमता रहा, तो आपको ट्रेड्स ही नहीं मिलेंगे, विच इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। कुछ लोग सिर्फ ट्रेडिंग को फुल टाइम प्रोफेशन बना के उससे अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। तो अगर मुझे पूरा दिन ट्रेड ही नहीं मिला, मैं पूरा दिन ट्रेड के सामने बैठा हूँ बट आई डिड नॉट गेट अ ट्रेड, तो कोई सेंस नहीं बनता ऐसी स्ट्रेटेजीज का जहां पे मुझे हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड्स मिले, राइट? तो और इसलिए हमने 9:15 से 10 का टाइम नहीं रखा। सवा अब कोई बोलेगा यार सिर्फ 5 मिनट का टाइम रख लो कि 9:15 से 9:20 का आप ये बना लीजिए रेंज, बट द प्रॉब्लम इज कि 9:15 से 9:20 का मतलब 5 मिनट का मैंने रेंज बनाया, तो उसमें अगेन वोलेटिलिटी इतना ज्यादा होगा कि पहले ऊपर गया बाद में नीचे छोड़ दिया, ठीक है? तो आपका आपका वोलेटिलिटी अभी भी चल ही रहा है मार्केट में। 9:30 तक मतलब 15 मिनट होने के बाद मोर और लेस मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ा सेटल डाउन, थोड़ा कूल डाउन हो जाता है, और उसी चीज का हमें फायदा लेना है कि एक बार वोलेटिलिटी कूल डाउन हो गया, उसके बाद मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, राइट? सो दैट इज द लॉजिक कि हमने 9:15 से 9:30 का टाइम रखा है। नेक्स्ट चीज, अब हम ऑप्शंस बाय क्यों नहीं कर रहे सर, हम ऑप्शन शॉर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हमें ये पता है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा, साइडवेज जाएगा, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अभी सपोज मैंने ऑप्शंस बाय कर लिया होता और मार्केट ने ऊपर का ब्रेकआउट किया और फिर ऊपर और गया नहीं बट साइडवेज चलता रहा, तो मेरा तो उसमें थीटा डी के पूरा हो जाएगा। तो इवन इफ मार्केट मेरे अगेंस्ट नहीं गया तो भी ऑप्शंस मैंने बाय किया तो भी मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो फिर उस चीज का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, राइट? सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि हम ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हैं और लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज कि सर हम हेज बाय क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टैंड नेकेड इन द मार्केट। मार्केट्स का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपने बजट वाले दिन देखा हो तो मार्केट 400-500 का हाई बना के और वहीं पे घूम रहा था, बट जैसे ही 12:30 हुआ विद इन 5 और 10 मिनट्स मार्केट ने 600-700 पॉइंट्स का ऊपर की साइड मूवमेंट दे दिया, ओके? एंड देन मार्केट ने पूरा का पूरा वहां से मार्केट गिरा पूरा 2000 पॉइंट्स। सो यू नेवर नो कि मार्केट कहाँ पे किस साइड क्या कर लेगा, ठीक है? सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस यू नो मार्केट्स के रैंडम मूव्स में हमें नहीं जाना। रैंडम्स इसलिए बिकॉज सी मार्केट में वैसे कुछ रैंडम नहीं होता, ठीक है? एवरीथिंग इज प्लान्ड, बट रैंडम हमारे लिए है बिकॉज हमें पता भी नहीं इंस्टीट्यूशंस वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशंस का मकसद क्या है या वो क्या मैनिपुलेट करना चाहते हैं, राइट? तो हमारे लिए एज अ रिटेल ट्रेडर्स हमारे लिए तो ये रैंडम ही, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म रैंडम। तो हमें रैंडम मूव्स में वी डोंट वांट टू बी कॉट इन दोस रैंडम मूव्स, दैट्स द रीजन वी आर बाइंग हेज, ओके? सो आई जस्ट होप द लॉजिक्स ऑफ द स्ट्रेटजी इज क्लियर। अभी कुछ लोग जस्ट 1 मिनट आई विल टेक सम ऑफ द डाउट्स। सेलिंग रिक्वायर्स हेवी मार्जिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ओके? सो यहाँ इस स्ट्रेटजी में आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कितना है। इन आफ्टर 9:30 विच टाइम फ्रेम टू लुक फॉर हाई एंड लो ब्रेक? सो आफ्टर 9:30 आपको टाइम फ्रेम नहीं देखना है, मतलब कि 9:15 से 9:30 का आपने रेंज ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जैसे ही वो ब्रेक हो, भले वो 9:42 को ब्रेक हो या 9:45 को ब्रेक हो, 11:15 को ब्रेक हो, 11:17, 11:18, 11:19 कभी भी ब्रेक हो, जिस मोमेंट पे वो ब्रेक हो गया उसी मोमेंट पे हमें ट्रेड ले लेंगे, राइट? बैक टेस्टिंग का डेटा कहाँ मिलेगा, विन लॉस रेशियो कहाँ क्या रहेगा? सो ऑल दोज रिजल्ट्स वी हैव टेकन।
where we can backtest this data for free. Guys, I am not sure कि data आपको free में कहाँ से मिलेगा, but we have this data. So we have done on our own data, right? Which is authentic, which is 100% authentic. This is one thing that I can vouch for, that the data we have is 100% authentic. Perfect. So these were the doubts. So अभी हम strategy के results देखेंगे और उसका backtest देखेंगे क्या है. So backtesting period is 6 months. By 6 months, सर 6 महीने से क्या होता है? Because फिन निफ्टी में वीकली एक्सपायरीज अभी रिसेंटली चालू हुई है, राइट? तो हमारे पास बहुत लिमिटेड डेटा था, तो उस डेटा के बेसिस पे ही हमने बैक टेस्टिंग किया. ओके फाइन, ठीक है सर. सर आपको प्रॉफिट्स कितना हुआ? सो वी हैव गॉट 61,652 रुपीज इन 6 मंथ्स. ओके, मैक्स ड्रॉडाउन हमारा 10,000 रुपीज का था, राइट? कैपिटल रिक्वायर्ड पर लॉट इज 65,000. ओके, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर 65,000 में तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते, बट हम हेज भी तो बाय कर रहे हैं. अगर आप सिर्फ नेकेड फिन निफ्टी का ऑप्शन शॉर्ट करेंगे तो आपको 160 से लेकर 170-80 तक का मार्जिन लगेगा. आई एग्री, बट हम हेज भी तो बाय कर रहे हैं. जब भी आप हेज बाय करेंगे तो आपका जो मार्जिन है वो 60 to 70,000 आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट इज विनिंग रेट क्या है इसका? 71 विनिंग परसेंटेज का ये है 71%, विच इज क्वाइट हाई. हो सकता है कि आने वाले पीरियड में इट कैन कम डाउन टू 65 और 66, बट अगेन दैट वुड बी टू गुड, राइट? अगर आप बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं. हमने एवरी डे का बैक टेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे डाला हुआ है, बट ड्यू टू सम लिमिटेशंस हमने पूरा रिजल्ट नहीं डाला है यहाँ पे. सो अगर आप देखेंगे कि 23 जनवरी को हमने 18,800 का पी शॉर्ट किया था. सीएमपी क्या चल रहा था उस टाइम पे, क्लोज कितना हुआ, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट लॉस हुआ. सो ये सब कुछ हमने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है. इफ यू वांट टू बैक टेस्ट इट ऑन योर ओन, यू कैन प्लीज डू इट, राइट? बट our data is authentic and you can do it. So perfect, guys, this was about the strategy and this was about the session. If you have any doubts, please write it in the chat box. Any doubts, any doubts in logic या फिर कुछ और आपके अगर suggestions है, how to backtest the strategy. So guys, हम लोगों ने ये strategy को हमारी बैक टेस्टिंग टीम है उससे पूरा बैक टेस्ट करवाया है, राइट? यू कैन टेस्ट इट ऑन योर ओन ऑल्सो, यू कैन टेस्ट इट मैनुअली. रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे इस सेशन के. प्लेटफॉर्म फॉर बैक टेस्ट, गाइज देयर आर सम बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं. आई वुड नॉट नेम देम, आई वुड वांट कि अगर आप खुद गूगल करके फाइंड करें तो इट वुड बी बेटर. बट आप अगर चाहें तो आप इस स्ट्रेटजी को मैनुअली भी बैक टेस्ट कर सकते हैं. इट इज नॉट दैट टफ कि ये मैनुअली बैक टेस्ट नहीं हो सकता. कैन आई गेट रिकॉर्डिंग्स? यस, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे आपके. आई हैवंट रिसीव्ड ऑल old recordings links as well. Guys, please get in touch with the Smart Learn team. So आप अगर if you'll get in touch, write a mail to them, they will send you the link. How to connect with you? So at the end of this session, we will be sending a feedback link. So in that you can get the information. Fine. So this was about, I think majority of the doubts have been covered. Right. So for strategy 1, guys, for strategy 1 and 2, I would again request you to please get in touch with the Smart Learn team. आप strategy 1, 2 and 3 इस सेशन का भी आपको रिकॉर्डिंग उनसे मिल जाएगा. Can you teach how to backtest? Yes, I can definitely teach you how to backtest the strategies, but we'll take it in some other session, right? I'm not sure how we can do it, but I mean, I know how to backtest and I can teach you, but we'll have to plan it accordingly. So today's strategy, So today's
session strategy. Angad, sorry, I'm not getting what you are trying to say. Perfect. So now that's it for this session, guys. Thank you so much. We would now close the webinar. Any suggestions or feedbacks are highly welcomed and appreciated. So कुछ भी आपके web suggestions हो या feedbacks हो, please let us know, and we'll take it seriously, and we'll try to work on that. Perfect. Okay, guys, thank you so much for attending the session. Hope to see you again next month. Sorry, guys, just one thing. जिन्होंने मेरा लास्ट वाला सेशन अटेंड किया था, तो लास्ट सेशन में हमने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम कोई रिवर्सल स्ट्रैटेजी देखेंगे, ठीक है? बट अभी अगेन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, तो ये क्यों सर? आपने तो लास्ट मंथ बोला था कि हम लोग कोई रिवर्सल स्ट्रैटेजी देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम फीडबैक सेंड करते हैं, और हमें फीडबैक्स में मिला कि दो चीजें मिली हमें। एक तो सर हमें फिन निफ्टी पे कोई स्ट्रैटेजी चाहिए जो हम फिन निफ्टी पे कर सकें, बिकॉज फिन निफ्टी में अब लिक्विडिटी आ गया, राइट? एंड नेक्स्ट वाज कि सर हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए, सिंपल स्ट्रैटेजी, जो हम अगर मैनुअली भी करना चाहें तो हम कर सकें, राइट? सो दैट वाज द मेजर रीजन दैट हमने फिन निफ्टी एंड एक सिंपल स्ट्रैटेजी उठाई है। बट नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग एट सम रिवर्सल स्ट्रैटेजीज, because that's what I had promised. So we'll take it in the next session for sure. Yeah. So, sir, can there be a session which teaches us how to come up with new strategies, which can teach us how to think about creating new strategies? Perfect. Yes. So we will take it in the coming sessions कि हम strategies back testing अगर कुछ करना है तो उसके लिए हम strategies कैसे सोचे, क्या कर सकते हैं. So we'll take it. Definitely we will take it. Angad, for sure we will take it. Okay, thank you so much, guys. Thank you so much for attending this session. Let's catch up next month again. Thank you. And I would appreciate अगर आप लोग फीडबैक फॉर्म को भर के और आज ही या फिर as soon as possible अगर उस पर रिप्लाई कर पाए तो. Yeah, thank you so much, guys.